нашим народом. Хочу поблагодарить вас за внимание, с которым вы меня выслушали. И с удовольствием передаю слово нашему уважаемому гостю, премьер-министру Индии, господину Моди. In conclusion, I would like to express confidence that the short visit of the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, to Uzbekistan will open up a new page in our relations and render the powerful impetus to their effective and fruitful development. I thank you for your attention, and with pleasure I offer the floor to our esteemed guest, the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. His Excellency, President Islam Karimov, members of the media, I am delighted to be in the historic and beautiful city of Tashkent. It carries the bonds of family that comes from sights and stories we grow up with. I thank President Karimov and the people of Uzbekistan for the very warm welcome and hospitality. Ваше превосходительство, президент Ислам Каримов, члены СМИ. Я очень рад, что я сейчас присутствую в историческом и красивом городе Ташкента. Это здесь я чувствую теплоту, знакомство с теми картинами и рассказами, которые мы знаем уже с детства. Я благодарю президента Каримова и народ Узбекистана за такое теплое гостеприимство и за такой теплый прием. It's a pleasure to meet President Karimov. He has led with great vision and wisdom to steer Uzbekistan progress and advance peace and prosperity in the region. Today, I embark on a 5-western tour of Central Asia. It reflects our resolve to start a new era in our relationship with Central Asian economies. Our relationship with the region has ancient roots and has left a strong imprint on both. It now occupies a significant place in India's future. I have begun my journey in Uzbekistan. This underlines this nation's importance for India, not just in the context of this region, but also more broadly in Asia. Придается мне большое удовольствие встретиться с президентом Каримовым. Он очень умело ведет свою страну, у него есть великое видение и мудрость, чтобы руководствовать прогрессом Узбекистана и продвигать народ Узбекистана в сторону мира и вообще процветания в целом этом регионе. Сегодня я начал свою поездку в 5 стран Средней Азии. Это отражает мою решимость начать новый этап наших отношений с Среднеазиатской республикой. Наши отношения с этим регионом уходят корнями в глубокую историю и оставил он очень сильный печать и на нашу страну, и на этот регион. И теперь это отношение занимает очень важное место в будущем Индии. Я начал свою поездку со стороны Узбекистана. Это подчеркивает то, насколько важно считает Индия, Узбекистан, не только в контексте этого региона, но вообще более широко в Азии. In recent years, India and Uzbekistan have built a strategic partnership on the foundation of mutual respect and shared interests. This includes expanding economic cooperation, combating terrorism, advancing stability in the region, and promoting regional integration. President Karimov and I have very cordial and productive discussions. His perspective will be immense benefit to me in the days ahead.
За последние годы Индия и Узбекистан создали стратегическое партнерство на фундаменте взаимного уважения и общих интересов. Это включает расширение экономического сотрудничества, борьбу с терроризмом, продвижение стабильности в регионе и содействию региональной интеграции. Мы с президентом Каримовым имели очень дружественные и продуктивные переговоры. Его взгляды будут намного мне помогать в будущие дни. I share President Karimov's desire to raise the level of our economic agreement. I convey to him that there is a strong interest in Indian builders to invest in Uzbekistan. There is immense potential in a broad range of areas in Uzbekistan. I have urged him to make process and policy for Indian investments smoother. President responded positively to my suggestion. President was also supportive of strengthening our ongoing cooperation in the areas of agriculture, information technology, and energy. We also discussed steps needed to implement the contract of supply of uranium from Uzbekistan signed earlier. Я разделяю желание президента Каримова поднять на новый уровень наше экономическое взаимодействие. Я выразил ему великий и глубокий интерес индийского бизнеса сделать инвестиции в Узбекистане. Существует огромный потенциал в многих сферах и направлениях в Узбекистане. Я попросил его сделать процедуру и политику для индийских инвестиций более плавной. Президент очень положительно отреагировал на мое предложение. Президент также поддерживает укрепление нашего сегодняшнего сотрудничества в разных направлениях в сельском хозяйстве, в информационных технологиях и в энергии. И также обсуждали, какие меры нам надо принять, чтобы выполнить контракт для поставки урана из Узбекистана, который был подписан раньше. President Karimov and I discussed various initiatives to further enhance connectivity between India and Uzbekistan. I briefed him about the international north-south transport corridor and proposed that Uzbekistan consider becoming a member. I sought his support for India joining the Ashgabat Agreement. I am pleased with the agreements in the areas of culture and tourism because they will bring our people closer. Few countries can match Uzbekistan in nurturing Hindi and Indian culture. Tomorrow, I look forward to meeting a vibrant group of Indologists and Hindi linguistics. Мы с президентом Каримовым, мы также обсудили, какие меры нам надо принять для развития нашей связи между Индией и Узбекистаном. Я проинформировал его о международном транспортном коридоре Севера-Юг и сделал предложение, чтобы Узбекистан стал членом этого коридора, присоединился к этому коридору. Я искал у него, попросил у него поддержку для членства Индии Ашхабадского соглашения. Я очень рад, что мы подписали соглашение в области культуры и туризма, потому что эти помогут сблизить наши народы. Мало кто может равняться с Узбекистаном для поощрения языка хинди и индийской культуры. Завтра я с нетерпением жду свою встречу с динамичной группой индологов и лингвистов хинди. India will expand cooperation in capacity building to increase in the number of training officers in India. Consistent with our commitment, the Uzbekistan-India Information Technology Center has been upgraded this year. I welcome President Karim's assurance to ensure speedy completion of the Entrepreneurship Development Center being set up in Tashkent.
We also discussed regional and international issues, including the situation of Afghanistan. We also have shared concerns on the rising threat of extremism and terrorism in our extended neighborhood. Индия будет расширять сотрудничество в области развития человеческих ресурсов и возможностей через увеличение तो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसको आप सुन रहे थे, उज़्बेकिस्तान, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं और कई अहम समझौते वहां पर हुए हैं। ख़ास तौर पर जो एग्रीमेंट हुए हैं वो कल्चर और टूरिज़्म के साथ कई दूसरे भी हैं, और वहाँ पर जो हैं इस्लाम कारिमोव, उन्होंने उनके सामने दस्तखत हुए हैं और बहुत अहम ये दौरा कहा जा रहा है। हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हैं ख़ास मेहमान राजीव डोगरा साहब, पूर्व राजनयिक हैं। राजीव डोगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जैसा कि हम सुन रहे थे, वहाँ पर भी डिटेल्स आनी थोड़ी सी बाकी हैं, लेकिन जो अहम दिख रहा है इस वक्त, क्योंकि पीएम मोदी और जिनकी टीम है इस पूरे दौरे को लेकर खासी उत्साहित दिख रही है, आपकी नज़र में क्या बड़ा बिग एजेंडा है जो कि इस बार अचीव हो सकता है? देखिए, बड़े एजेंडे की ना बात की जाए तो अच्छा है, और ना ही कोई एजेंडे की बात की जाए, क्योंकि हम शायद भूल जाते हैं कि उज़्बेकिस्तान के साथ हमारे बहुत गहरे संबंध हैं, हिस्टोरिक संबंध हैं, कुछ अच्छे, कुछ खट्टी, कुछ मीठी यादें। तैमूर लंग उज़्बेकिस्तान के हैं, बाबर भी उज़्बेकिस्तान के हैं, और आज के सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन की गिनती में। और उज़्बेकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक तौर से, जिसका प्रधानमंत्री ने अभी इशारा भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो रीजनल सिचुएशन है और टेररिज्म का मुद्दा है, वो काफ़ी उन्होंने राष्ट्रपति कारिमोव के साथ उठाया। राष्ट्रपति कारिमोव को सबसे पहले मैं मिला था 9/11, मतलब जब न्यूयॉर्क में अटैक हुआ था, उसके अगले दिन मैं बाय चांस ताशकंद में था ऑफिशियल कैपेसिटी में, और इमीडिएटली उसी दिन इनके साथ मेरी मुलाकात हुई। तो ये बहुत ज़्यादा चिंतित हैं टेरर के मामले में। तो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा एजेंडा उनकी तरफ से टेरर ही होगा, और आने वाले दिनों में इसका क्या रूप होगा और क्या रुख होगा इस रीजन में, मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा उस पर चर्चा हुई होगी। बाकी विषयों पे भी चर्चा हुई होगी, बाकी विषय भी एजेंडा में हैं, पर बाकी विषयों में एक कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कामयाबी पाना बहुत जल्द मेरे विचार से शायद इतना आसान नहीं होगा। एक ज़रूर जिसका प्रधानमंत्री ने इशारा किया था कि न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई, वो जो है हमारी चर्चा काफ़ी देर से चलती रही है, और हो सकता है उसमें जल्दी सफलता मिले, पर बाकी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनमें टाइम लगेगा। और कल्चरल रिश्ते जिस तरीके के रहे हैं उज़्बेकिस्तान के साथ भारत को लेकर, चाहे फिल्मों की बात करें या फिर हिंदी को लेकर मैं कहूँ, बहुत ही अलग तरह के रहे हैं। और सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जहाँ पर भारतीयों की संख्या भी अच्छी खासी है और लगातार रिश्ते प्रगाढ़ होते रहे हैं। किस तरीके से इन रिश्तों को आगे बढ़ाने की जो कवायद होती रही पिछले कुछ वर्ष? जी सर। देखिए, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बार गया हूँ पूरे सेंट्रल एशिया रीजन में, और मेरा संबंध बहुत गहरे और बहुरूपी रहे हैं सरकार के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को स्ट्राइक किया था कि जितने हमारे रिश्ते मजबूत थे 2000 साल पहले सिल्क रूट के टाइम के वक्त, या ग्रेट गेम 200-300 साल पहले, अब जो है बहुत कमज़ोर है। जब मैं बुखारा और समरकंद जाता था तो सबसे पहले मेरे को दिखाया जाता था कि ये हिंदी बाज़ार है, जहाँ पे इंडियन ट्रेडर्स और इंडियन मनी चेंजर्स उनके हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे, ताकि सिल्क रूट में जो आने जाने वाले हैं उनको वो सहायता कर सकें, उनका मनी एक्सचेंज कर सकें, उनके साथ ट्रेडिंग कर सकें। जी। अब जो है
हम शायद 14वें या 15वें नंबर पे हैं आज के दिन में उज़्बेकिस्तान के ट्रेडिंग पार्टनर की हैसियत से। तो कुछ ना कुछ कमी है जो हम पुराने समय में ट्रेड ज़्यादा कर सकते थे और अब जो है कम हुआ बहुत है। कम चीन, रशिया, जी राजीव डोगरा साहब, या मैं रोकना टर्की चाहूंगा आपको वगैरह कुछ के पलों के लिए, क्योंकि साउथ हमारे कोरिया साथी के मुकाबले अखिलेश सुमन इस वक्त ताशकंद में मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, स्वागत है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो तमाम बातें रही हैं, क्या मैं कहूँ कि सार आपकी नज़र में है अब तक जो सामने आ रहा है? देखिए कविंद्र, बात यह है कि अभी तक भारत ने एक जो पुरानी नीति अपनाई थी कि इस खेमे के साथ जुड़ के रहो, उस खेमे के साथ जो नहीं है उसके साथ नहीं रहो। आपको याद होगा सोवियत संघ के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए जो सोवियत विरोधी जो ताकतें थी उसके साथ भारत ने तकरीबन एक तरफ से दूरी बना ली थी। सोवियत संघ के विखंडन के बाद जब ये देश अलग हुए तो भारत के साथ भी एक भावनात्मक दूरी बनी इन लोगों की और भारत ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया इन रिश्तों को। लेकिन बाद के समय में भारत ने यह नीति अपनाई है कि जितने खेमे हैं दुनिया में उन सारे खेमों के साथ दोस्ती बनानी है। और इसी लिहाज से अगर कहें तो अभी आज जब रूस के भी संबंध इन देशों के साथ अच्छे हुए हैं तो वैसे में भारत ने यह भी सोचा है कि जब सबके साथ संबंध अच्छे हैं तो हम क्यों दूरी बनाए रखें। और इसी नीति के तहत भारत ने यह तय किया है कि ये जो उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया का सबसे महत्वपूर्ण ऐसा देश है जहाँ की भारतीय लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, वहाँ भारत के साथ सांस्कृतिक लोगों का जुड़ाव है, वहाँ के लोग हमारी फिल्में देखते हैं और वैसे देश के साथ हमारे आर्थिक संबंध मजबूत होने चाहिए। और आर्थिक संबंध के साथ साथ जो राजनीतिक संबंध है उन राजनीतिक संबंधों में प्रौढ़ता आनी चाहिए। और इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह जो यात्रा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि मध्य एशिया के देशों के साथ एक बार फिर बहुत ही गंभीरता से साथ, बहुत ही गहरे रूप के साथ जुड़ने का यह अवसर है। लेकिन एक बात मैं कविंद्र यह भी बताना चाहता हूं कि जो बात होती है कि चीन के बहुत सामान अटे पड़े हैं, चीन के सामान हर जगह अटे पड़े हैं, कोई ऐसा सिर्फ उज़्बेकिस्तान नहीं है। लेकिन जहां जहां भी चीन के सामान जाते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि चीन के साथ उनकी बहुत गहरी राजनीतिक दोस्ती है। भारत की जो थाती है, भारत की जो ताकत है वह है भारत के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव। और उसी भावनात्मक जुड़ाव के साथ राजनीतिक संबंधों के आधार वो भारत जो अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता है यह महत्वपूर्ण है। और बाद के दिनों में जब हमारे व्यापार अच्छे होंगे, हमारा जब उत्पादन अच्छा होगा तो वहाँ भी हमारे उत्पाद जाएंगे। कभी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, ताशकंद से ताज़ा अपडेट देने के लिए आपका। डोगरा साहब, एक आखिरी सवाल समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा आर्थिक मोर्चे पर हम पहले से खासे कमज़ोर हुए हैं, व्यापार में कमी आई है, क्या देखते हैं कि नई सरकार के बाद और जिस तरीके की पहल मैं कहूँ कि अब शुरू हो रही है या हुई है पिछले कुछ वर्षों में, उसका कुछ इम्पैक्ट इसमें कुछ दिखेगा? देखिए, डिप्लोमेटिक तरीके से ना बोलते हुए अगर मैं फैक्चुअल तरीके से बोलूं जी, तो अगर पीओके जो है वो भारत में होता और डायरेक्ट हमें लैंड रूट होते तो फिर हमारे रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती, चाहे ट्रेड हो, कल्चर हो या किसी हिसाब से भी, डिफेंस हो या स्ट्रेटेजिक हो। पर अभी सबसे हमें मुश्किल ये है कि अगर हम उज़्बेकिस्तान से गैस लेना चाहते हैं या यहाँ से कुछ भेजना चाहते हैं तो बहुत रास्ते में हमारे विलंब है। तो प्रैक्टिकल दृष्टि से मेरे को नहीं लगता कि ये ओवरनाइट कोई चेंज होने वाला है या कोई बड़ा चेंज होने वाला है। पर सबसे ज़्यादा जो हमको चेंज करना है वो अपनी एक पॉलिसी को चेंज करना है कि लैंड रूट या एयर रूट या सी रूट या ये सब को छोड़ के हमको इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स ना हो, वहीं पे प्रोड्यूस करो और वहीं पे ट्रेड करो जी। तो ये अगर हम पॉलिसी शिफ्ट ला सकें अपने पॉलिसी में तो मेरे को लगता है कि इसके बेनिफिट्स हमको बहुत जल्द मिलेंगे। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हम कर लेंगे या पाइपलाइन बिछा देंगे अफगानिस्तान के जरिए, तब तक हम अटकते रहेंगे। राजीव डोगरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें, रहिएगा हमारे साथ।
एक के बाद एक मौतें लगातार। कौन है अपराधी, कौन है जिम्मेदार? देखिए देश देशांतर, व्यापम का सच, आज रात 8:30 बजे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार व्यापम मामले की सीबीआई जांच के लिए तैयार है। हाई कोर्ट की निगरानी में जांच होने के चलते कोर्ट के आदेश के बाद ही ऐसा हो सकता है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान से इस पूरे मसले पर 10 सवालों पर सफाई मांगी है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम मामले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को हटाने से जुड़ी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। पिछले 3 दिनों में पत्रकार अक्षय सिंह, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा और सागर में महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध मौत ने व्यापम मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की है। सीबीआई को ही जांच सौंपी जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में उसकी जांच होना चाहिए। इतना मैं जानता हूं कि शिवराज सिंह जी खुद को बचाने में सबको जुर्मी बना रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने सागर में महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध मौत के तार भी व्यापम घोटाले से जुड़े होने की आशंका जताई है। सोमवार सुबह ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की लाश पुलिस अकादमी के पास तालाब से मिली थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर मौत को व्यापम मामले से जोड़ने से बचना चाहिए। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि उस दुखद घटना का व्यापम या व्यापम की जांच से कोई संबंध नहीं है और हर ऐसी दुखद घटना को व्यापम से जोड़ना न्याय संगत भी नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मामले की एसआईटी जांच हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही है। ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद ही सरकार सीबीआई की जांच करा सकती है। यह तो हाईकोर्ट को फैसला करना है। इसके पहले भी एक पीआईएल हो चुकी है हाईकोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जांच कराने के लिए। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया है। तो हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कैसे आदेश दे सकते हैं? इधर व्यापम मामले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें पद से हटाने से समेत दूसरी याचिकाओं पर 9 जुलाई को सुनवाई करेगा। करोड़ों रुपए के व्यापम भर्ती और घोटाला मामले में हाई प्रोफाइल पेशेवर, राजनेता और नौकरशाह समेत कई आरोपी हैं। लेकिन मामले से जुड़े कई लोगों की मौत ने इसे और पेचीदा बना दिया है। विपक्ष इस मामले से जुड़े 46 लोगों की संदिग्ध मौत की बात कह रहा है, वहीं राज्य सरकार 25 लोगों की मौत की बात मान रही है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। उधर दिल्ली पुलिस ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा की मौत के मामले में शुरुआती जांच में किसी साजिश से इनकार किया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट और सबूतों में साजिश का संदेह नहीं। इसके बावजूद पोस्टमार्टम के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और इसके लिए होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। डॉक्टर अरुण शर्मा व्यापम घोटाले की जांच कर रहे थे और रविवार को दिल्ली के द्वारका इलाके में एक होटल में संदिग्ध हालत में मृत पाए गए थे। कि अच्छे से तफ्तीश हम कर रहे हैं। अगर कोई बात ऐसी निकलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं अपनी तफ्तीश से सेटिस्फाइड हूं कि जो भी इसमें आवश्यक था वो हमने अभी तक किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अविवाहित मां बच्चे के पिता का नाम बताए बिना और उसकी अनुमति के बिना बच्चे की अभिभावक हो सकती है। जस्टिस विक्रमजीत सेन और अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने एक महिला की अपील स्वीकार करते हुए आज ये व्यवस्था दी है। याचिका में बच्चे के संरक्षण संबंधी कानून को चुनौती दी गई थी, जिसमें अविवाहित होते हुए भी बच्चों के संरक्षण के मामले में बच्चे के पिता को शामिल करने का प्रावधान है। निचली अदालतों के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे के संरक्षण के लिए मां का नाम ही काफी होगा और उसे बच्चे के पिता का नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने आज ऑर्डर दिया है कि फादर का नाम डिस्क्लोज करने के लिए जरूरत नहीं है और फैमिली कोर्ट प्रोसीड कर सकती है इनकी एप्लीकेशन पे इनको सोल गार्डियन डिक्लेयर करने के लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बार फिर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। केजरीवाल सरकार ने इस मसले पर जनमत संग्रह की संभावनाओं को अब वो टटोलना चाहती है और इस बाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे वक्त से की जा रही है।
अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मकसद को पूरा करने के लिए जनमत संग्रह का सहारा लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने मंत्रालय से पूछा है कि इस मसले पर जनता की राय शुमारी किस तरह से मुमकिन है। अब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि सभी का जो घोषणा पत्र में वादे थे और जो दिल्ली की जनता चाहती है, दिल्ली की जनता की इच्छा क्या है, दिल्ली की जनता क्या चाहती है, उसको एक बार समाज के सामने, दुनिया के सामने लाया जाए और उसके बाद दबाव डालकर, जैसे कि और भी कोई राज्य बनते हैं तो जब समाज खड़ा होता है तभी वो राज्य बनते हैं, अब दिल्ली को राज्य बनाने के लिए शुरुआत करी जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस कवायद की निंदा करते हुए केजरीवाल पर असली मुद्दों से जनता को भटकाने का आरोप लगाया है। क्या केंद्र सरकार के ऊपर राज्य राज करेगी? क्या 2 पुलिस सिस्टम होंगे? यहाँ के जो विदेशी दूतावास हैं उस पर राज्य सरकार अपना कानून चलाएगी? ऐसे तमाम तरह के प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के उत्तर उसके लिए बहस और उसके लिए पूरी चर्चा के साथ चीजों को करने की आवश्यकता है। केजरीवाल हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। एक बहाना खत्म होता है, दूसरा बहाना ढूंढते हैं लड़ाई लड़ने का। केजरीवाल को इन सब बहानों को छोड़ करके केजरीवाल को दिल्ली की जनता का काम करना चाहिए। बीते कई महीनों से अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल में अधिकारों पर मतभेद है। इसके लिए दिल्ली सरकार कोर्ट तक जा पहुंची है। अब केजरीवाल जनमत संग्रह की संभावनाओं के जरिए केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश में है। जनता से राय लेकर अपना कार्ड खेलने वाली केजरीवाल सरकार ने इस बार पूर्ण राज्य की मांग पर अपना मास्टर स्ट्रोक चला है। केजरीवाल ने जनता के दम पर इस बार केंद्र पर निशाना साधने की कोशिश की है, क्योंकि केजरीवाल खुद ये जानते हैं कि इस मसले पर केंद्र की सहमति बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उत्तराखंड में आज हुई तेज बारिश के बाद राज्य में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है तो असम में अब भारी बारिश के चलते बाढ़ का खतरा बढ़ गया। उधर दिल्ली एनसीआर में आज हुई बारिश के बाद लोगों ने तेज गर्मी से राहत महसूस की। उत्तराखंड में रविवार से हो रही तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भूस्खलन से कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। बाढ़ की चेतावनी के बाद 4 धाम यात्रा को एक बार फिर रोकना पड़ा। प्रशासन ने राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करा दिए हैं। राज्य में बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। यह मंडी डिस्ट्रिक्ट में 60 से लेकर 70 जो मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है और आने वाले दिनों में भी जो बारिश है वो जारी रहेगी। कम से कम जो 4-5 दिन लगातार जो बारिश हो सकती है और कुछ एक इलाकों में भारी बारिश होने की भी संभावना रहेगी। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने किसी भी तरह के हालात से निपटने की तैयारियां की हैं। We trying our best, keeping the finger crossed. और हम रेडी है, किसी भी भगवान करे कोई दुर्घटना ना हो, भगवान करे कोई त्रासदी न हो। असम में भी बाढ़ के हालात अभी बेकाबू हैं। यहाँ 125 गांवों में करीब 65,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में 3800 हेक्टेयर में खड़ी फसल पानी में डूब चुकी है। बोंगाई गांव में 4 राहत शिविर खोले गए हैं। इधर उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह बारिश हुई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। यहाँ मौसम काफी सुहावना हो गया है और तापमान में कमी दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और बांग्लादेश ने आज से 162 गलियारों में रहने वाले लोगों से उनकी राष्ट्रीयता को लेकर साझा सर्वे शुरू कर दिया। इन गलियारों में 51,584 लोग रहते हैं। ऐतिहासिक सीमा करार के तहत 111 गलियारों का बांग्लादेश में और 51 गलियारों का भारत में विलय होना है। गृह मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सीमा में आने वाले 111 गलियारों में 50 टीम, जबकि बांग्लादेश की सीमा में मौजूद 51 गलियारों में 25 टीमें नागरिकता की पसंद को लेकर सर्वे कर रही हैं। सर्वे के 23 जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है और पिछले महीने 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश जब वो दौरे पर गए थे तो दोनों देशों के बीच भूमि सीमा करार के दस्तावेजों की अदला बदली हुई थी। अगले साल 30 जून को दोनों देशों के नक्शे इस करार के मुताबिक बदले जाने हैं। 41 साल पुराने समझौते को बजट सत्र के दौरान संसद से मंजूरी मिली थी। जनमत संग्रह में यूरोजोन की बेलआउट शर्तों को नकारने के बाद ग्रीस में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री सिप्रास ने दोहराया कि जनमत संग्रह के नतीजे यूरोजोन से बाहर निकलने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बातचीत के लिए हैं। और अब सबकी निगाहें कल होने वाले यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की बैठक पर टिकी हैं।
राजधानी एथेंस में संसद के सामने जश्न जारी है। नाचते गाते ये लोग जनमत संग्रह में यूरोपीय यूनियन का प्रस्ताव खारिज होने का जश्न मना रहे हैं। 61% मतदाताओं ने नो के पक्ष में वोट दिया और प्रस्ताव को नकार दिया। वहीं प्रस्ताव के समर्थन में महज 39% वोट पड़े। I think every one of us was afraid, but we said no. If we said yes, then it will happen the same thing. जनता के भारी समर्थन के बाद ग्रीस की वामपंथी सरकार उत्साहित है। सिप्रास अब यूरोपियन कमीशन से बातचीत से पहले विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीस की सरकार जल्द ही यूरोपीय यूनियन से नए बेल आउट पैकेज पर बात करेगी। Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. नतीजों के बाद ग्रीस के वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब सबकी निगाहें मंगलवार को होने वाली यूरोपीय यूनियन के वित्त मंत्रियों की बैठक पर टिकी है। इस बैठक से ही यूरोजोन का अगला कदम तय होगा। बैंक संकट और अस्थिरता के कारण टैक्स जुटाने में आई कमी के चलते ग्रीस की अर्थव्यवस्था फिर से कमजोर हो गई है। इन हालात में यूरोजोन और ग्रीस के बीच समझौता और मुश्किल लगता है। I hope that the Greek government will make in the next coming hours meaningful and constructive proposals allowing that it is meaningful and possible to renegotiate. It doesn't really matter which way the vote went in a way, because Greece either goes soon or it goes at some point in the not too distant future, so it's effectively down to timing. But yeah, I mean a no vote on a lot of people's reckoning probably translates to something like a 70 to 80% chance of a Grexit. जनमत संग्रह का असर यूरोप की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। डॉलर के मुकाबले यूरो 1% तक कमजोर हो चुका है। ग्रीस के बैंकों में नकदी की कमी हो रही है और यूरोपीय केंद्रीय बैंक से उन्हें आपात रकम मिलना बेहद जरूरी है। आर्थिक किल्लत का आलम यह है कि कई बैंकों ने एटीएम मशीनों से एक दिन में निकाले जाने वाली अधिकतम राशि को सिर्फ 60 यूरो तक सीमित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।